it is very important for I think each and every aspirant to do is brainstorming PYQs, daily answer writing. ये तो I cannot emphasize enough how important it is. Read something and you can actually produce it on the paper. ठीक है, बहुत average ही होगा but आपको बहुत successful feel होता है अंदर से कि चलो आज कुछ effective पढ़ाई हुई है मेरी. By the time you are in the phase जहाँ आपने prelims अपना clear कर लिया और mains आप दे रहे हो, at least 7 to 10 questions के बीच में आपको daily answer लिखना चाहिए. तो वहाँ पे वो mentality ऐसी थी कि कागज भरना है क्योंकि कागज भरने को दिया जाएगा. यहाँ पे आपको उस मेंटालिटी को छोटा करके ये देखना है कि आपको यूपीएससी कागज लिमिटेड दे रही है. वो ये बोल रही है कि मेरे को ये आप आंसर 3 पेज में करके बताओ, मेरे को नहीं चाहिए आपका 10 पेज का आंसर. आपके पास एक ही पेज में होना चाहिए ताकि जब आप रिवाइज करो तो आप सिर्फ ये पेज अपना रिवाइज करो एंड यू आर गुड टू राइट. तो निकिता, हाउ टू मेक वन पेजर नोट्स, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए. I started my full-fledged preparation after I joined the Ultimate Assessment Program at Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. There is a 12-month strategy which I have done on Civils Daily platform only. I reached out to the Civils Daily team. Civils Daily. Current affairs में Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. With Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. A mentorship program of Civils Daily, and that did help me a lot. You might have seen, you definitely have seen Nikita before on our platform, and she's wonderful. She has a lot of information, a lot of idea about how this examination works. And you can see from the topic, it is about clearing mains in the first attempt. She's the right person to say this because she also cleared when she gave her first mains. So of course, she was struggling with prelims before, but once she got the opportunity to write mains, she was in the list. And this is exactly what she wants you to be. And this is how you should be. Prelims at times can become very random. It does not have a defined syllabus. Lot of prelims depend on that day of your examination. But mains, on the other hand, can be done right. If you master a few things, you will be in a position to do it. Do great here. So thank you so much, Nikita, for taking out your time. It's always an honor to host you. Sir, the honor is all mine. Okay. So Nikita, it's all about doing 1% better every day. Yeah. And this is what we want them to do. If you do this consistently for a year, the improvement is roughly 38%. And that's a very famous book. You all should read this. Do write in the comment if you have read this book, if you have read this quote before. But it's very, very real that if you improve 1% every day, your chances improves by 38%, right? So Nikita will be emphasizing more on this. You will know why this quote is mentioned in this session. So over to you, Nikita. Please go ahead with the pillar of mains and as we take the webinar forward. Thank you, sir. Hello, everyone. My name is Nikita, and I am AIR 408 of this year's Civil Services examination. So, very briefly about myself. So, this was my 4th attempt, and I could not clear prelims for the past 3 attempts. But when I did clear prelims, I made sure that I do not get stuck at any more levels, and I cleared my mains in my very first attempt. And I could only do that because I realized कि mains को करने का there is a very logical and there is a very technical way you go about doing that exam. So I knew 2-3 people जिनका mains जिन्होंने previous year में rank clear किया है, and I went to them and the first and the only question I asked them इसकी निकलता कैसे है mains. कुछ पहले की तैयारी थी definitely, but of course you need encouragement and right guidance from the people जिनके rank आए हैं, and this is what they told me. That is what I applied in my preparation, and I feel कि this is what I should also tell you people. So mains को हम लोग basically 4 main pillars में divide करते हैं, और इन 4 pillars के अंदर ही हमें सबसे ज़्यादा काम करना होता है. पहला हमारा GS static है, सेकेंड हमारा करंट अफेयर्स है, थर्ड हमारा अपना ऑप्शनल होता है, और फोर्थ हमारा एसे एंड एथिक्स होता है. अब इन 4 पिलर्स में करंट अफेयर्स एक ऐसा पिलर है जो हर 3 पिलर में फिट होता है, बट यू कैन नॉट से एग्जैक्टली द सेम फॉर ऑल द अदर 3 पिलर्स. कुछ थोड़ा बहुत ओवरलैप है, बट अगेन यू हैव टू रिमेम्बर कि जीएस के आंसर्स जीएस जैसे लिखने होते हैं, एसए को एसए जैसा ट्रीट करना होता है, एज इन वो जो पेस्टल अप्रोच हम लोग लगाते आ रहे हैं कई साल से, इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर. इट हैज नॉट वर्कड इवन दिस ईयर फॉर स्टूडेंट्स हु हैव डन दैट.
और एथिक्स का आंसर वी हैव टू एब्सोल्युटली मेक श्योर कि जीएस के आंसर जैसा नहीं अपीयर हो रहा है। एथिक्स के अपने कीवर्ड्स होते हैं, एथिक्स की अपनी डेफिनेशंस होती हैं, उनके एग्जांपल्स, व्हाटएवर यू डू इट शुड नॉट बी सिमिलर टू व्हाट यू डू इन जीएस पेपर. So these are the four pillars you absolutely have to be very very cautious about, and इनको उनके requirement के according हमें पढ़ना है, keeping in mind कि current affairs is the one thing जो आप तीनों ऑप्शनल में अच्छे तीनों ऑप्शंस में अच्छे से यूज कर सकते हो. ऑप्शनल आपका खुद का होता है. एज आई हैव सेड दिस बिफोर आल्सो, दैट्स द ओनली पेपर वेयर कमीशन आस्क्स यू कि आप किस चीज में कंफर्टेबल हैं. सो यू हैव टू चूज इट वेरी वाइजली, एंड व्हेन यू डू इट यू हैव टू मेक श्योर कि बिफोर यू गिव योर मेंस, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आपका ऑप्शनल हो जाना चाहिए. एंड बाय हो जाना चाहिए आई मीन कि उसका आप रिविजन कर रहे हो, बिकॉज पहले आपने अपना ऑप्शनल कंप्लीट कर रखा है. Right. So these are the four pillars. I think सबसे ज्यादा फोकस हमें इन चारों पे करनी है. So how do we? How did you do it? How did you, of course, clear this? So this was your masala, and this is something you would suggest to aspirants also, right? Yes, sir. So we can Definitely. discuss this, of course, all these segments in detail. But of course, please explain to them why and what these segments mean. Yes, sir. So now that we have talked about the four pillars, अब हमें इन four pillars को attempt कैसे करना है? How do we go about making sure कि हमारे ये सारे four pillars cover हो रहे हैं? So the very first thing that it is very important for I think each and every aspirant to do is brainstorming PYQs. होता क्या है कि आंसर राइटिंग हमें मालूम है करना है, वो भी एक बहुत क्रूशियल पॉइंट है. बट जब हमें कंटेंट लैक फील होता है एंड हमें लगता है कि हम आंसर राइटिंग अभी करने को रेडी नहीं है, तो rather than not even looking at the questions of PYQ, the best thing you could do is brainstorm them. कि आप कोई भी जिस भी सब्जेक्ट को आप करेंटली पढ़ रहे हो और आपको लगता है कि ठीक है मुझे कुछ कुछ समझ आने लगा है इस टॉपिक के बारे में, उस टॉपिक से रिलेटेड लास्ट 10 इयर्स के पेपर्स में से मे बी रिसेंट वाला उठा लीजिए, सबसे सबसे रिसेंट वाला, पिक दैट अप एंड ब्रेनस्टॉर्म दोस क्वेश्चंस, एज इन थिंक अबाउट इट. थोड़ा सा मतलब एक टाइम के लिए अपने दिमाग से हटा दीजिए कि आपके पास कोई भी टाइम लिमिट है इस क्वेश्चन को करने का. एंड योर ब्रेन इज गिविंग यू ऑल द टाइम, ऑल द स्पेस एंड ऑल एवरी कंटेंट दैट यू हैव गैदर्ड, एंड जस्ट पुट दैट कंटेंट इन योर क्वेश्चन. और आप सोचिए कि अगर मेरे को ये आंसर अटेम्प्ट करना होगा तो मैं ये आंसर कैसे अटेम्प्ट करूंगी, इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखूंगी, इसका बॉडी कैसे लिखूंगी, एंड एक्चुअली राइट इट. सिर्फ सोचना नहीं है, लिखिए भी. अगर इस क्वेश्चन में डायग्राम का डिमांड है तो क्या मेरा डायग्राम बनेगा. सो दैट इज हाउ यू गो अबाउट ब्रेनस्टॉर्मिंग PYQs. आई थिंक आगे में सर विल आल्सो आई विल शो थ्रू टू क्वेश्चंस हाउ डू यू ब्रेनस्टॉर्म PYQs, राइट. Then is your one pager notes. Of course I think सबका emphasis है उसमें, इसलिए मेरा भी emphasis है उसमें, because it is actually very important और वो आपको बहुत बहुत handy आता है, especially when you have very less time between prelims and mains. इस और वन पेजर नोट्स में ऐसा है कि ऑफ कोर्स कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं डेफिनेटली जो बड़े होते हैं, आप उनको वन पेजर में नहीं कवर कर सकते, बट स्टिल उनके नोट्स आपके पास हैंडी होने चाहिए. अब जैसे एथिक्स के एसए के पेपर में ऑफ कोर्स देयर कैन नॉट बी एनी वन पेजर नोट्स, बट देयर कुड बी फ्यू अदर थिंग्स व्हिच वुड बी कॉल्ड एज योर नोट्स, एज इन कुछ कोटेशंस हो गए जो आपको फील होता है कि एसए में चल सकते हैं, कुछ ऐसे थिंकर्स हो गए जो आपको लगता है कि आप अपने एसे में डाल सकते हो, कुछ एनेक्डोट्स के नोट्स आप बना लीजिए. तो नोट्स शुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर होल प्रिपरेशन, सारे चारों पिलर्स के. उसके बाद है आपका डेली आंसर राइटिंग. ये तो आई कैन नॉट एम्फसाइज एनफ हाउ इम्पोर्टेंट इट इज. एंड डेली आंसर राइटिंग में आपको धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली यू हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू अटेम्प्ट. स्टार्टिंग में एक दो क्वेश्चन लिखने में ही लगेगा कि बहुत थक गए, मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है करना, इतना दिमाग ही नहीं चल रहा, इतना कंटेंट नहीं आ रहा. बट यू विल सी कि जैसे जैसे आपको आदत बनेगी आंसर लिखने की, एक तो आई फील कि उस प्रोसेस में थोड़ा मजा आने लगता है, क्योंकि आपको बहुत इफेक्टिव गेन फील होता है. आई डोंट नो हाउ आई कुड एक्सप्लेन दिस, बट यू हैव रेड समथिंग एंड यू कैन एक्चुअली प्रोड्यूस इट ऑन द पेपर. ठीक है, बहुत एवरेज ही होगा, बट आपको बहुत सक्सेसफुल फील होता है अंदर से कि चलो आज कुछ इफेक्टिव पढ़ाई हुई है मेरी. एंड धीरे धीरे उसको 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 क्वेश्चन करते करते बाय द टाइम यू आर
इन द फेज जहां आपने प्रीलिम्स अपना क्लियर कर लिया और मेंस आप दे रहे हो, एटलीस्ट 7 to 10 क्वेश्चंस के बीच में आपको डेली आंसर लिखना चाहिए. दिस इज मतलब इससे कम तो आई विल से कि नहीं करना चाहिए. और उसके बाद टेक अ ब्रेक, सर्टन किसी एक हफ्ते में एक दिन का ब्रेक जरूर लीजिए, बिकॉज मेंस इज वेरी एग्जॉस्टिंग एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम. एंड उस ब्रेक को अच्छे से यूज करिए, रिलैक्स, और जाके फिर फुल लेंथ टेस्ट लगाइए. Right. व्हाट आई डिड So, इन द correct. gap. So if we talk about your answer writing, let's start with daily answer writing, as you said. So everybody who, of course, you must be writing answers, and your initial answers would feel something like this. This is so why we have put this answer is because we want to show that rankers also were at your place at some point of time. Okay, so they also used to write answers like you are writing. So if you are in college, if you are beginning your preparation, राइट आंसर्स. दैट्स वाई हमने ये आंसर यहाँ रखा है निकिता का, कि आप देखिए कि इन्होंने भी ऐसे ही लिखे थे आंसर्स, राइट. एंड वील ऑल्सो शो कि हाउ शी इम्प्रूव्ड. Daily answer writing is one of the most important pillars, and of course she has explained about it. She'll explain more. So Nikita, take us back to those days when you were starting your answer writing. And of course, I can only laugh right now and see when I see my answers. I used to write huge answers. ये मैंने अपने पुराने एक दो वीडियोस में भी मेंशन किया है कि I was a humanities student, तो writing something was never a struggle for me. The only thing which I struggled in was कि उसको छोटा कैसे करना है. अब दो तीन चीजें हैं जो मुझे उस वक्त एकदम नहीं समझ आती थी जब मैंने लिखना स्टार्ट किया था. एक तो कि आप इतने छोटे छोटे फॉन्ट में नहीं लिखते, मतलब कोशिश करनी होती है कि आप फॉन्ट बड़ा करो. आपको 2 पेज दिया है यूपीएससी ने, सो ट्राई कवरिंग द पेज. इतना ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़ना चाहिए आपको, मतलब दिखना चाहिए कि आपने वर्ड लिमिट को यूज करते हुए वो दोनों पेजेस को अच्छे से यूज किया है. छोटा छोटा लिख रही हूँ, उसके बाद बहुत बड़े बड़े इंट्रोडक्शन तो चलो ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे एक जेट स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन था ये, तो इतना बड़ा इंट्रो आप सोचो, अगर मैं इसके फॉन्ट बड़े बड़े कर दूं इस इंट्रो के, तो ये 7-8 लाइन की इंट्रो चली जाएगी मेरी. उसके बाद स्टार्टिंग में जब उनका इंपॉर्टेंट रोल बताना है तो बहुत बड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए मैं रोल बता रही हूँ कि जेट स्ट्रीम का कैसा होता है. उसके बाद पॉइंटर्स में भी आप देखो अननेसेसरी मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया है. एल नीलो एंड ना लीना वाले पॉइंट्स में तो इतना एक्सप्लेनेशन चाहिए भी नहीं, बट मैंने पूरा पैराग्राफ जैसा उसको लिख दिया है. और फिर यहाँ आके किसी तरह छोटे छोटे करके मैंने 1.5 पेज में खत्म करके, मुझे लगता था कि मेरा तो 1.5 पेज में खत्म हो गया, सही है, मेरा तो कवर हो जाएंगे. उसके बाद आई रियलाइज कि मैंने इफेक्ट कुछ मतलब आंसर इसमें मेरे को मार्क्स नहीं मिलेंगे, और अगर मिल भी गए तो अगर ऐसा आंसर में एक आंसर पे अगर लिख रही हूँ तो मेरा पेपर कभी खत्म नहीं होगा. सो व्हाट इवेंचुअली व्हाट आई अंडरस्टूड इज कि आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा कंसाइज, छोटा, 3-4 लाइन का. उसके बाद आप बड़े हेडिंग्स अपने छोटे करो, इतना बड़ा बड़ा हेडिंग्स नहीं लिखना है. मे बी 1 लाइन 2 लाइन जो क्वेश्चन आपसे पूछा है. जैसे मुझे लगता है कि अर्बनाइजेशन पॉलिसी से रिलेटेड दिस वाज सम वन ऑफ द क्वेश्चंस. सो देन आई रियलाइज कि अच्छा ठीक है, ओके, हाउ यू गो अबाउट दिस. आप एक एक यू नो इंट्रोडक्शन लिखो, उसके बाद उनके एक एक लाइन में लिखो, फिर उनका सब हेडिंग दो. बट इसमें भी आप देखो मैं बहुत जगह पे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ, एंड दिस इज अ 15 मार्कर क्वेश्चन इफ यू सी. और 15 मार्कर क्वेश्चंस में इफ आई एम राइटिंग सो मच देन अगेन मेरा पेपर नहीं खत्म होगा. but also underlining a lot, Nikita. Yeah, I also used to underline a lot for some reason. मुझे लगता था कि सब चीज इंपॉर्टेंट है, सब अंडरलाइन कर देती हूँ, और जो समझ में आ रहा है सब लिख देती हूँ. मेरे को एक तो मटेरियल को लेके फोमो कि ये नहीं पढ़े वो नहीं पढ़े, आंसर राइटिंग में भी फोमो कि एक काम करते हैं, ये भी लिख देते हैं, ये भी लिख देते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, सब लिख देना है. बेसिकली कंसाइज करना मेरे को नहीं आ रहा था, मुझे बस जो इन्फॉर्मेशन पड़ी. और ये फनी बात ये है कि ये सारे आंसर्स मैं एक्चुअली प्रिपेयर करके लिखती थी. बाद में वो चीज समझ में आई कि हर समय पढ़ पढ़ के आंसर राइटिंग करूंगी तो तब तो लिखा ही जाएंगे आंसर. मेंस के क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते जो आपने सारे पढ़ रखे होंगे. वहां पे आपको समझ आया कि अच्छा ठीक है, फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग क्यों करनी होती है, कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपके दिमाग को प्रैक्टिस है उस चीज की कि कैसे आंसर फॉर्मेशन में लिखते हैं क्वेश्चंस को. दिस वाज समथिंग आई यूज्ड टू रीड 2-3 दिन लगा के, और फिर मजे मजे में बैठ के आंसर लिखती थी मैं. एंड आई यूज्ड टू राइट दिस, इतने बड़े बड़े आंसर्स, कोई वर्ड लिमिट का ध्यान नहीं, कोई देयर इज नो लॉजिकल वे ऑफ अटेम्प्टिंग कि किस पॉइंट को पहले ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है. आंसर राइटिंग कम एस्से पेपर ज्यादा दिख रहा है ये मेरा. But Nikita, see, a lot of them are also in college, and since you are also from humanities background, I am also from humanities background. In our college,
तो पूरे डायनेमिक्स अलग होते हैं। कॉलेज में हमें सिखाया जाता है कि आप जितने पेजेस भरोगे, जितना ज्यादा लिखोगे, उतने आपको नंबर मिलेंगे। अब यहाँ पे आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है आप कंसाइज हो जाओ। सो ओवरनाइट वो शिफ्ट करना भी आई थिंक बहुत मुश्किल है, एंड दिस इज समथिंग वी बोथ ऑफ अस ऑफ कोर्स हैड फेस्ड, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे वो भी फेस ये कर रहे होंगे, आई एम श्योर। राइट, सो मोर ऑन दिस, एज अ कॉलेज स्टूडेंट के माइंडसेट से निकल के यूपीएससी एस्पिरेंट बनना, वो उसमें क्या लगता है, व्हाट शिफ्ट इज देयर? सर मुझे लगता है पहली चीज तो ये समझने की जरूरत है कि कॉलेज में हमें बुकलेट मिलती थी एंड वी ऑलवेज हैड द प्रोविजन कि हम हाथ उठा के एक नया बुकलेट मांग लें। तो वहां पे वो मेंटालिटी ऐसी थी कि कागज भरना है क्योंकि कागज भरने को दिया जाएगा। यहाँ पे आपको उस मेंटालिटी को छोटा करके ये देखना है कि आपको यूपीएससी कागज लिमिटेड दे रही है। वो ये बोल रही है कि मेरे को ये आप आंसर 3 पेज में करके बताओ, मेरे को नहीं चाहिए आपका 10 पेज का आंसर। तो आपको 3 पेज में करना पड़ेगा। आपको सच में एकदम समटाइम्स माई ब्रेन यूज टू बी ऑन फायर कि इसको छोटा कैसे करें यार, ये छोटा थोड़ी हो सकता है। बट अगेन वही है ना, इनिशियल में फील होता था कि दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू डू, बट वो प्रैक्टिस करते करते आपको समझ आने लगता है कि अच्छा ओके कितना बताना है उनको। क्योंकि होता क्या है ना, क्वेश्चन का डिमांड को समझना इंपॉर्टेंट होता है। इनिशियली क्या होता था, क्वेश्चन पढ़ते थे और जो आता है उसके बारे में लिख देते थे, तो ऑफ कोर्स आंसर लंबा जाता था, उसमें इररेलेवेंट चीजें भी होती थी। बट अब आदत ऐसी बन गई है कि क्वेश्चन को एकदम समझो कि स्कोप पूछ रहा है तो सिर्फ स्कोप पे बात करेंगे, उसमें एडवांटेज नहीं घुसाएंगे या डिसएडवांटेज के बारे में नहीं बात करने लगेंगे। अगर चैलेंजेस पूछा है तो सिर्फ और सिर्फ चैलेंजेस बताएंगे। वो मुझे लगता है कि थोड़ा क्वेश्चन का डिमांड समझ के उसको दिमाग में रिस्ट्रिक्ट करना कि चैलेंज पे ही सिर्फ सोचेंगे इज व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू। Now, over a period of time, when she used to write daily answers, after that, the improvement, of course, started showing up. And this is probably 3 months, 4 months down the line, she came to this level of answer writing. तो अगर आज आप अगस्त में शुरू कर रहे हो उस पैराग्राफ फॉर्म से, तो दिसंबर आते आते, नवंबर आते आते आप यहाँ आ जाओगे। सो ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट द प्रोसेस, लेकिन आपको शुरू कहीं से करना पड़ेगा। हाँ, आप पहले दिन ही आंसर नहीं लिख सकते हो, सो डोंट चेज द परफेक्शन। इस परफेक्शन को लेके आप आंसर ही नहीं लिखोगे, और आप अब उस पर रिलाय नहीं कर सकते कि बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस जो 90-80 डेज हैं उसमें यू विल राइट आंसर्स, तब तो यू आर कंप्लीटली आउट ऑफ द सीन। आपको अभी से लिखना पड़ेगा, ऐसे ही शुरू करना पड़ेगा। द बिगिनिंग इज वेरी हम्बल, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू ऑल बिकम probably an expert, or you write confidently. Nikita, more on this, तो इस जर्नी पे कैसे आए आप? सो इवेंचुअली जब सो फीडबैक मैकेनिज्म एज आई सेड कि इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आंसर अगर लिख रहे हो तो डू गेट इट चेक्ड प्लीज। किसी से जिसको एक्चुअली में क्लू है कि कैसे लिखते हैं मेंस का आंसर, उनसे फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। एंड द 3-4 फीडबैक्स विच आई यूज टू गेट कंसिस्टेंटली वॉज आप अपना फॉन्ट साइज बढ़ाओ, आप बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हो, आप बहुत सारा ब्लैंक पेज छोड़ दे रहे हो, तो उस पे थोड़ा इवेंचुअली वर्क। डायग्राम्स बनाओ। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में आई डू नॉट यूज टू मेक डायग्राम्स। मेरे को चमकता भी नहीं था कभी कभी तो कि डायग्राम भी बना सकते हैं यहाँ पे। वो मतलब एक अजीब सी आदत है जो आपको अपने दिमाग में घुसानी पड़ती है कि हर समय सोचो कि यहाँ डायग्राम बन सकता है क्या, एक अच्छा सा डायग्राम बना दूं क्या, इससे क्या मेरा आंसर और अच्छा। और जहां आपको वो स्कोप दिख रहा है आप डायग्राम बनाओ। अब ये मतलब मैं आपको ऑनेस्टली बोलूंगी दिस इज अगेन आंसर व्हिच आई प्रिपेयर्ड एंड रोट, बट आई रोट बेटर ऑफ कोर्स, क्योंकि ये आई थिंक दिसंबर जनवरी के टाइम के अराउंड की बात है। सो यहाँ तक आते आते मेरे को एक वो समझ आने लगा था कि ठीक है कंटेंट अपना छोटा करना है, तो कंटेंट तो मैंने छोटा कर दिया। बट आप देखो मैंने कितना सुंदर सा यहाँ पे एकदम ड्राइंग बनाया है प्यार से, एकदम ग्राफ करके, और एकदम इतना टाइम नहीं, मेंस में इतना टाइम नहीं होगा। यही डायग्राम को आपको जल्दी बनाना सीखना है, यही डायग्राम को आपको 10 से 15 सेकंड में बना लेना है। ये प्रैक्टिस बिना हाँ प्रैक्टिस हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिस है ये। बट हाँ मेरे को एक चीज उसके बाद मुझे लगता है इस आंसर में उन्होंने मेरे को शायद 10 नंबर का है ये, तो उन्होंने मुझे 4.5-5 दिए थे। दैट वाज द फर्स्ट, ये आई थिंक मेरा फर्स्ट आंसर है जिसमें मेरे को एक्चुअली डिसेंट नंबर आए थे। बट अगेन उनका रिव्यू था इस आंसर पे कि आपका फॉन्ट बहुत छोटा है, आप फिर से छोटा छोटा लिख रहे हो। तो ठीक है, फिर उस पे काम किया, फिर और फॉन्ट इंक्रीज किया। तो very important point you have raised, Nikita, is feedback mechanism. That's very important. आप isolation में silos में आंसर मत लिखिए। If you cannot afford a mentorship, at least have a peer group, या आप अपने आंसर्स evaluate करते रहें।
राइट। अगर मेंटोर है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर मेंटोर नहीं है, हैव अ पीयर ग्रुप, एक दूसरे का आंसर इवेलुएट करिए। और ऑफ कोर्स पीयर ग्रुप में वो लोग रखो जो वेटरन्स हैं, जो मेंस दे चुके हैं, सो दैट आपको एक फेयर आइडिया हो कि आंसर कैसे लिखना है, और इवेलुएट करते रहिए। राइट। फीडबैक जब तक नहीं मिलेगा आप इस एग्जाम को साइलोज में नहीं अटेम्प्ट कर सकते किसी भी स्टेज पे। ऑल थ्री स्टेजेस रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ फीडबैक टू यू, तभी आप इसको क्लियर करोगे और अपनी डिजायर्ड रैंक लेके आओगे। Right. So, of course, Nikita, now you have started writing like this, right? So, apart from feedback mechanism, what else worked? Feedback mechanism is one, practice is two. What else? इसके अलावा मेरे को लगता है, मेरे को एक चीज समझ में आई कि मेरे को थोड़ा सा आंसर राइटिंग करते रहना है, और साइड बाय साइड पीवाईक्यूज को पढ़ पढ़ के भी कंटेंट गैदर करना है। तो एक चीज होती है कि आप बस बुक पढ़ते हो और समझते हो कि कैसे पढ़ना है, क्या याद करना है। इवेंचुअली मुझे समझ में आया कि सिर्फ किताबें पढ़ूंगी तो मेरा दिमाग कभी उस माइंडसेट से नहीं जाएगा कि इसमें से क्वेश्चंस कैसे बनता है। तो उसके अलावा मुझे लगता है सबसे ज्यादा चीज जो मुझे हेल्प की है वो ये है कि मैंने एक के बाद पीवाईक्यूज उठाना शुरू किए और देखना शुरू किया कि क्वेश्चंस पूछ कैसे रहे हैं, और उसके बाद उस सब्जेक्ट को उसके रिक्वायर्ड कंटेंट के अकॉर्डिंग पढ़ा है। एंड उसका रिजल्ट ये हुआ है कि मेरे फॉन्ट साइजेस बड़े हो गए, मेरा तीनों पेज नीचे तक पूरा कवर हो रहा था, एंड आई वाज आल्सो इन माय वर्ड लिमिट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, इंश्योरिंग कि मेरा आंसर का एक क्लीन लुक आ रहा है। And I think Presentation this, also matters, right? हाँ, So of aesthetic course it matters. matters. I think challenges वाले पार्ट में यहाँ पे जो है थोड़ा सा I could do write a little better. पता नहीं क्यों थोड़ा सा मैंने सजाने के चक्कर में इसको थोड़ा सा ऐसे इस फॉर्म में कर दिया है, बट आई वुड सजेस्ट कि इसको हमेशा आप ऐसे पॉइंट फॉर्म में या एरो फॉर्म में लिखो। ये थोड़ा सा चैलेंज वाला पार्ट हल्का सा इज लाइक I could do better, but the rest of the things I think I did well, and I also got I think I scored pretty decent here. Again उन्होंने ये challenges वाले चीज को भी उन्होंने गोल करके बोला था कि इसको ऐसे मत आप लिखो, आप पॉइंट्स में लिखो। तो वो चीज भी है कि इवन आफ्टर प्रैक्टिस एंड इवन इफ मतलब ये भी है ना कि आप हर चीज सही कर रहे हो, उसके बाद भी आपके एक दो आंसर्स ऐसे आएंगे बन के जिसमें आप परफेक्शन एकदम लाओ, जरूरी नहीं है, बट इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू ट्राइड अटेम्प्टिंग इट फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरा आपने रेलेवेंट चीजें उसमें लिखी हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आई थिंक उस टाइम फ्रेम में भी, जितने कम टाइम में आपको आंसर्स लिखने होते हैं, सारे आंसर्स आप एकदम परफेक्टली लिख लो, ये भी पॉसिबल नहीं होता है। ह्यूमन एरर का हमेशा आपको स्कोप रखना है, एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ दोज ह्यूमन एरर्स दैट आई डिड इन दिस आंसर। करेक्ट। 7.5 मिनट्स हैं आपके पास, तो आपको उस हिसाब से सब एस्थेटिक्स भी देखना है, डिमांड भी समझना है, बहुत कुछ लिखना है, वैल्यूएडिशन भी करनी है। लेकिन तो एक चीज बताओ कि जैसे करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स का आंसर का फॉर्मेट अलग होगा, स्टैटिक आंसर का फॉर्मेट बहुत अलग होगा। तो अभी आप क्या, अच्छा अभी हमारे पास ऑफ कोर्स डेक नहीं है करंट अफेयर्स का आंसर शो करने के लिए, बट अगर आप इसी में बता पाओ कि करंट अफेयर्स का आंसर और एक स्टैटिक का आंसर कैसे डिफरेंट होगा, एंड व्हाट, अभी जो ये लोग बिगिनर्स हैं प्रोबेबली इनका स्टैटिक इतना स्ट्रांग नहीं है, करंट अफेयर्स इज समथिंग they would be reading from magazines and newspaper, so I think would you recommend them to start at least writing current affairs based answers at this point of time? डेफिनेटली, ऑफ कोर्स यू, मतलब मुझे लगता है कि जब आप इस प्रिपरेशन में घुस गए हो तो कोई भी चीज को इस ये सोच के नहीं छोड़ना है कि इसको बाद में करेंगे। इस हर चीज को स्टार्टिंग से करो आप, डायग्राम्स बनाने की प्रैक्टिस स्टार्टिंग से करो आप, करंट अफेयर्स के आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस स्टार्टिंग से करो। और करंट अफेयर्स और स्टैटिक क्वेश्चंस में ना एक बहुत मेजर अंतर होता है, एंड ऑफ कोर्स दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल, बट मेजॉरिटी क्वेश्चंस में आप देखोगे कि जो सब्जेक्ट एकदम स्टैटिक है ना, जैसे उसमें जैसे हिस्ट्री ही आप ले लो या पोस्ट इंडिपेंडेंस आप ले लो, उसमें आप देखना कि वे फॉरवर्ड का बहुत ज्यादा स्कोप नहीं होता है, या वो ऐसा है कि उस एरा में क्या चैलेंजेस और मेजर्स हैं उस टाइम के हिसाब से कुछ बात कर रहा होगा, बट करंट फ्यूचरिस्टिक प्रोस्पेक्टिव बहुत उस आंसर का नहीं है क्योंकि वो स्टैटिक है, उसमें कुछ डायनामिज्म आपको नहीं दिखेगा। और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का सबसे मतलब बहुत कॉमन क्या बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन जिससे आप कर सकते हो कि एक कुछ तो बहुत ऑब्वियस होते हैं, जब वो स्कीम पूछ देते हैं या रिसेंटली लगा देते हैं तब तो वो बहुत ऑब्वियस हो जाता है, बट कहीं कहीं पे ऐसा आपको लगेगा कि अच्छा अगर वाटर पोल्यूशन के बारे में पूछा है तो वो वाटर पोल्यूशन आपको लगेगा आपको कि स्टैटिक पोर्शन है क्योंकि वाटर पोल्यूशन तो हर कोई जान रहा है, बट जहां उन्होंने पूछ दिया कि इनके कंजर्वेशन मेजर्स में क्या क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ये आपका करंट का पार्ट हो गया। अगर उन्होंने पूछा है इसका मतलब इट हैज बीन इन द न्यूज दैट देयर आर सम कंजर्वेशन मेजर्स जिस पे बात चल रही है,
and they're expecting you to write that in your answer. वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सारे जान रहे हैं, ये सारे स्टैटिक पोर्शंस का पार्ट है. बट देयर इज अ हिंट इन दैट क्वेश्चन कि आपको उस स्टैटिक पोर्शन को यूज करते हुए आपको करंट अफेयर्स भी डालना है वहां पे कि रिसेंटली ये कंजर्वेशन एफर्ट्स चल रहा है, इस स्टेट में ये चल रहा है, या कोई ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस हो, उस तरह की चीजों को आपको मेंशन करना है. स्टैटिक पोर्शंस में आप यूजुअली देखोगे कि आप उस टाइम में जो क्वेश्चन पूछा है उस टाइम के हिसाब से आप आंसर कर पाते हो, बहुत उसका वे फॉरवर्ड नहीं बता पाओगे, बहुत उसका फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव नहीं होता है. तो स्टैटिक आंसर्स को याद करके उस पर आंसर लिखना आसान होता है, बट द रिमेम्बरिंग पार्ट इज ट्रिकी इन स्टैटिक पार्ट. एंड करंट अफेयर्स में आई थिंक आप थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज कर सकते हो, बट अगेन वहां पे यू नीड कंटेंट. अगर कुछ ऐसा आपसे पूछ दिया है जिसमें जो आपने नाम ही नहीं सुना है तो आप अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे उसको. तो इसलिए अभी से जरूरी है कि आप स्टैटिक के तो प्रैक्टिस करो ही, करंट के भी प्रैक्टिस करो. आई थिंक अ लॉट ऑफ करंट का मटेरियल, करंट रिलेटेड मटेरियल के क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं मार्केट में. और आई थिंक बहुत सारे कोचिंग वेबसाइट्स हैं जो डेली बेसिस पे एडिटोरियल से उठा के क्वेश्चंस देते हैं. वो तो आई थिंक मेरे को लगता है बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, वेर यू हैव जस्ट रेड दैट करंट अफेयर एंड यू हैव ट्राइड अटेम्प्टिंग एन आंसर ऑन इट. दैट इज आल्सो समथिंग व्हिच कैन बी डन. राइट. सो कुछ सालों का जो बजवर्ड है ना, दैट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग. क्योंकि बहुत सारे रैंकर्स, लास्ट ईयर बेंजो केम रैंक 57 और 59. इस साल हेमंत इज आल्सो देयर रैंक 13. ही इज द हाईएस्ट स्कोरर इन मेंस. इन लोगों ने आंसर लिखे ही नहीं है. ठीक है, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड. हम कहते हैं कॉपीज दिखाओ अपनी, कहते हैं ही नहीं सर दिखाने के लिए. हम कहते हैं अच्छा कहीं और टेस्ट लिखा होगा, नहीं लिखा सर, कहीं भी ढूंढ लो. आदित्य पांडे भी था 2022 में, कहीं भी हमारी कॉपी ढूंढ लीजिए, नहीं है. तो जब कोई आंसर ही नहीं लिख रहा, कोई मॉक टेस्ट ही नहीं लगा रहा, किसी कोचिंग में उनकी कॉपीज ही अवेलेबल नहीं है, तो रैंक कैसे आ जा रही है वो भी. एंड हाउ आर यू टॉपिंग मेंस उस पर भी. तो उन्होंने कहा कि देखो, इसका ये मतलब नहीं कि हम आंसर नहीं लिख रहे थे, हम PYQs को ब्रेनस्टॉर्म कर रहे थे. एंड दिस हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर मेंस प्रिपरेशन विच यू कांट अवॉइड. डेली आंसर तो आप लिखेंगे क्योंकि आपको आंसर राइटिंग सीखनी है, बट आप PYQs और उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग को आप छोड़ नहीं सकते हो. सो निकिता, मोर ऑन दिस. I call this as a favorite intellectual pastime. No, actually it is. And I think जब बहुत प्रिपरेशन के टाइम पे व्हेन यू फील कि बहुत कंटेंट पढ़ते पढ़ते आप बहुत ज्यादा बॉग डाउन हो गए हो, आई थिंक दिस इज समथिंग यू कैन डू टू काइंड ऑफ चेंज द होल पेस ऑफ योर स्टडी. सो इफ यू सी, अगर दिस इज आई थिंक 2024 का ही क्वेश्चन है, तो आई थिंक दिस इज GS1 related, where they're asking what is regional disparity, how is it different from diversity, how serious is the issue of regional disparity in India. अब इस तरह के क्वेश्चन को हम ब्रेनस्टॉर्म कैसे करेंगे? हमारा पहला इंस्टिंक्ट जाता है सबसे पहले कि फट से डेफिनेशन लिखें कि रीजनल डिस्पैरिटी होता क्या है, तुरंत एक्सप्लेन कर दें. बट मेरा आपको सजेशन है कि इस क्वेश्चन को एकदम, अगर आप ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हो, आंसर लिखने जा रहे हो, तब तो सोचने का टाइम नहीं होता है. बट इफ यू आर ब्रेनस्टॉर्मिंग इट, सिट विद दिस क्वेश्चन फर्स्ट एंड एक बार सोचिए कि अभी रिसेंट में न्यूज में कहीं पढ़ा है क्या रीजनल डिस्पैरिटी के बारे में, कुछ कोई न्यूज देखी है, या कोई ऐसा इंस्टाग्राम पे कुछ कंटेंट देख लिया हो, या कुछ ऐसा वायरल वीडियो क्लिप देख लिया हो जो रीजनल डिस्पैरिटी किसी तरह से शो कर रहा हो. तो उससे स्टार्ट करिए आंसर अपना, थोड़ा दिमाग लगा के कि रिसेंटली ऐसा इवेंट हुआ है जो हमारे रीजनल डिस्पैरिटी को हाईलाइट कर रहा है. बट क्योंकि यहाँ क्वेश्चन व्हाट इज रीजनल डिस्पैरिटी है, तो आपको रीजनल डिस्पैरिटी एक्सप्लेन तो करना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई फिर क्वेश्चन ही नहीं है. बट हैड दिस बीन समथिंग जहाँ पे वो बस रीजनल डिस्पैरिटी मेंशन करके आगे की चीजें पूछ रहे हैं, रादर देन जंपिंग टू राइटिंग डेफिनेशन ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी, मेरे को लगता है पहले सोचिए कि होता क्या है रीजनल डिस्पैरिटी, कहीं न्यूज में है क्या. बट अब यहाँ पूछ रहे हैं कि व्हाट इज रीजनल डिस्पैरिटी. तो अगर फॉर समवन जिसको तुरंत डेफिनेशन नहीं आ रहा कि कैसे लिखें, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करके देखिए कि रीजनल डिस्पैरिटी क्या हो सकता है, क्या हम समझ सकते हैं. देन स्टार्ट ट्राइंग टू पुट इट इनटू वर्ड्स एंड उसको फिर एक एग्जांपल से समझाइए लास्ट में, इंट्रोडक्शन में ही अपने 1 से 2 लाइन के अंदर कि दिस इंसिडेंट जो है ये हमारा रीजनल डिस्पैरिटी को हाईलाइट कर रहा है, थिंक अबाउट इट. Then we address the second part of the question. अच्छा, brainstorming में सबसे, and I think when you do this in brainstorming ना, it actually helps you in your real exam is to wait and see कि पहले तो question के कितने parts हैं. आप पूरा क्वेश्चन पढ़ो और समझो कि इसमें पार्ट्स कितने हैं और हमें आंसर इसको किस पार्ट में करना है. और अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो इसके 3 पार्ट हैं.
पहला तो आपको बताना है कि रीजनल डाइवर्सिटी है क्या, दूसरा कि ये डिस्पैरिटी क्या है, फिर पूछ रहे हैं कि ये डाइवर्सिटी से कैसे अलग है, और तीसरा पार्ट ये है कि हाउ सीरियस इज द इशू ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी इन इंडिया। तो मेरे दिमाग में ब्रेनस्टॉर्मिंग के वक्त चमकना चाहिए कि अच्छा ओके, कितने, अगर ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मेरे को इसको 2 पेज में करना है, एंड आई हैव टू डिवाइड दिस क्वेश्चन इनटू 3 पार्ट्स वेयर आई हैव टू मेक श्योर कि मेरे तीनों पार्ट्स एड्रेस हो रहे हैं, कीपिंग अ 150 वर्ड लिमिट इन माइंड। एंड इफ इट इज अ 15 मार्कर क्वेश्चन तो मेरे को 3 पेज में इस आंसर को कैसे अटेम्प्ट करना है, एंड देन यू राइट, बस स्टार्ट राइटिंग। मतलब ऐसे नहीं, हड़बड़ी में नहीं, कुछ सोच सोच के आप लिखिए, दैट इज व्हाट यू डू। मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग को आप, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स, you just have to think very hard and think the dimensions of regional disparity that you see in your country। और उसके बाद फिर डाइवर्सिटी के बारे में सोचिए कि डाइवर्सिटी कैसे, क्या होता है, और फिर आप देखिए कि दोनों, एक का थोड़ा सा नेगेटिव कॉनोटेशन है और एक का पॉजिटिव कॉनोटेशन है, इवन दो वो सिमिलर साउंड करेंगे बट डिफरेंट है दोनों का मीनिंग। तो थोड़ा कॉमन सेंस से सोच के देखिए कि क्या डिफरेंट हो सकता है। डाइवर्सिटी का, अगर आपके दिमाग में डाइवर्सिटी वर्ड आता है तो आपके दिमाग में क्या क्या आता है? आपके दिमाग में आएगा कि हमारे कंट्री के वेरियस स्टेट्स हैं, डिफरेंट कुजीन्स आएगा, डिफरेंट कल्चर आएगा, इस तरह का दिमाग में आएगा। और फिर आप अगर डिस्पैरिटी सोचिए तो थोड़े से कुछ हो सकता है, कुछ नेगेटिव वो आए कि इस कहीं डिस्क्रिमिनेशन, कहीं कम्युनलिज्म, कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो इसको सोच के थोड़ा सा दिमाग में लाना है कि अच्छा ठीक है, ओके, दिस इज हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम डाइवर्सिटी, एंड लिखिए कि वेरी रफ ड्राफ्ट। उसको इस तरह से मत समझिए कि अभी मैं आंसर लिख रहा हूँ, अभी आई एम जस्ट गैदरिंग पॉइंट्स कि अगर मेरे को ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा तो इस क्वेश्चन में क्या क्या लिखना होगा। दैट इज हाउ यू गो अबाउट डूइंग ब्रेनस्टॉर्मिंग। और फिर सोचिए हाउ सीरियस इज द इशू ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी इन इंडिया। अगेन यहाँ पे थिंक कि क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, अगर ये इन चीजों को दिमाग में थोड़ा सा अपने आप एक्सट्रापोलेट करके सोचो कि अगर ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ गई तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, किन किन को इश्यूज हो सकता है, क्या वल्नरेबल सेक्शन इससे इफेक्ट हो सकते हैं, क्या विमेन पे कुछ अलग से असर पड़ेगा, क्या डिप्राइव्ड कम्युनिटी को कुछ अलग असर पड़ेगा। इस तरह से थोड़ा सा डायमेंशनली अपने आप को खोलिए। दूसरा ये एक तो वो है, उसके बाद जहां इशू पूछा है तो थोड़ा सा आपको वे फॉरवर्ड मेंशन करना पड़ेगा। यू जस्ट कैन नॉट से कि हाँ ये इशू है एंड देन मूव अबाउट इन योर आंसर। पहले मेरे को भी ये सब चीजें नहीं आती थी कि वे फॉरवर्ड मेंशन करना होता है, ये सारा आंसर राइटिंग से ही आप सीखते हो, जहाँ फीडबैक में वो आपको बताते हैं कि मैम आप इस तरह से यू कैन नॉट गो एंड लीव द आंसर इनकम्प्लीट विदाउट गिविंग अ वे फॉरवर्ड। तो वो आदत आती है कि अच्छा आप वे फॉरवर्ड लिखना, तो आप वे फॉरवर्ड सोचो कि कैसे कैसे कर सकते हैं, अभी आपको बस सोचना है। उसके बाद जॉट दो, जो भी आपके दिमाग में जितने भी पॉइंट्स आए ना उसको आप नोट कर लो अपने वो 2 पेज में, 3 पेज में, जितना भी आपको फिनिश करना है, एंड देन लुक अप दिस क्वेश्चन ऑन गूगल एंड सी कि हाउ हैव पीपल आंसर्ड दिस क्वेश्चन, कैसे लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, कैसे, एंड देन मैच दैट कंटेंट कि आपने क्या लिखा है और वहां पे जो वो बता रहे हैं कि ये इसका मॉडल आंसर होना चाहिए, इसका मॉडल आंसर एक्चुअली में होना कैसा चाहिए, उससे कंपेयर करिए एंड देन ऐड दोस पॉइंट इन योर आंसर्स। नोट डाउन करिए कि ओके ये मेरे से रह गया। दिस इज सच अ वंडरफुल एक्सरसाइज। मुझे लगता है कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें आपको इस ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू ही याद रह जाती हैं कि अच्छा रीजनल डिस्पैरिटी का क्वेश्चन था, उसमें ये 2 पॉइंट था जो मैं लिख सकता हूँ, कहीं ना कुछ आपको अपने आंसर राइटिंग में आगे चमक जाएगा, वो जाके वो याद रह जाता है। अगेन अगर आप सेकंड क्वेश्चन देखिए तो रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया पूछ रहे हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ, और फिर पूछ रहे हैं तो दिस, ये एक बहुत मुझे लगा था दिस इज वन ऑफ द फ्यू वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस दैट कमीशन आस्क्ड, और मुझे याद है आई हैड अ स्माइल ऑन माय फेस बिकॉज मैं पढ़ के गई थी ये क्वेश्चन। तो somehow I gave one of the mock and this PIL question came, और मैंने उसको, फनी बात ये है कि उस PIL के क्वेश्चन को मैंने एक्चुअली ब्रेनस्टॉर्म करके याद किया था, and I had this big smile on my face because I knew how to answer this question। तो दिमाग में सोचना है कि ठीक है, पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि PIL है क्या, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे यू डू नॉट हैव दैट एक्सक्यूज कि अरे यार PIL कहाँ से पूछ दिया, लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है PIL के बारे में। तो एक आपको बेसिक हिस्ट्री PIL की पता होनी चाहिए कि क्या थी, क्यों इंडिया में शुरू हुआ, किन जज के वजह से ये किन जज के इनिशिएटिव्स के वजह से ये हमारे कंट्री में ये PIL वाली चीज आई है। तो थोड़ा सा रीजंस एक्सप्लेन करते हुए आपको दिमाग में सोचना है। मैंने थोड़ा जॉली LLB वाले मूवी का भी एग्जांपल डाला था अपने इस आंसर में,
क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे लगा कि शायद मतलब वही मोनोटोनस तो आंसर्स लग ही रहे हैं सारे, जो बुक से उठाया हुआ कंटेंट है। थोड़ा सा आई कैन मेक इट अ लिटिल इंटरेस्टिंग, पुट समथिंग विच इज इवन दो रेलेवेंट, बट ठीक है, थोड़ा सा मतलब इंटरटेनमेंट वाले सेक्शन से भी है। तो आई स्टार्टेड विद द एग्जांपल ऑफ जॉली एल। मैंने इंट्रोडक्शन में स्टार्ट, आई थिंक नहीं, आई सॉरी, मैंने कंक्लूजन में जॉली एलएलबी का एग्जांपल यूज किया है इस क्वेश्चन में। और ये सब आपको तभी चमकता है जब आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रखी होती है, नहीं तो मुझे नहीं आता ध्यान में कि लिखना है। उतने स्ट्रेस वाले इन्वायरमेंट में इतना फन चीज आपको दिमाग में नहीं आता है। And the second part of the question, as a result of it, has the Supreme Court emerged as the world's most powerful judiciary? Of course, it's a very extreme statement. ये आप किसी भी जुडिशरी के बारे में, किसी भी कंट्री के जुडिशरी के बारे में आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि बहुत सबसे पावरफुल हो गई है हमारी जुडिशरी। बट ये तो चलो बहुत ऑब्वियस है, ये तो ऑन द फेस भी आपको पता है कि इसका आंसर मेरे को नो लिखना है। बट आपको इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करना क्या है? आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग ये करना है कि पीआईएल के वजह से हमारा सुप्रीम कोर्ट का एक जो पावर इनहैंस हुआ है वो हुआ कैसे है। ऑफ कोर्स वी आर नॉट द मोस्ट पावरफुल, बट दिस इज अ वेरी गुड स्टेप दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन, और इसके वजह से क्या फायदा हो रहा है एक्चुअली सिटीजंस को। दिस इज व्हाट यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म, थिंक अबाउट इट। और नहीं, कुछ भी नहीं समझ आया तो थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल से आप सोचो कि अगर पीआईएल आपको लग रहा है कि किसी के साथ इनजस्टिस हुआ है एंड पीआईएल डाली है, तो उससे क्या क्या फायदा इनिशियल हो सकता है। तो स्टार्टिंग में ना ब्रेनस्टॉर्मिंग में बहुत बहुत एवरेज पॉइंट्स आते हैं दिमाग में, बहुत जेनेरिक पॉइंट्स आते हैं। बट द फैक्ट दैट यू डिड ब्रेनस्टॉर्मिंग हेल्प्स यू कि जब हम अपना मॉडल आंसर देखते हैं तब हमें तुरंत समझ आ जाता है कि इसमें एडिशन क्या करना होता है। आपने यहाँ तक सोचा, अब इसको यहाँ तक कैसे लाना है, दैट इज व्हाट द मॉडल आंसर्स विल हेल्प यू, ओनली इफ यू हैव डन ब्रेनस्टॉर्मिंग। बाकी तो आप मतलब ऑफ कोर्स अपने इंस्टिंक्ट पे आप जो लिखो लिखो और उसको बाद आप मॉडल आंसर से चेक कर लो, वो भी आप कर सकते हो, वो करते ही हैं लोग, मैं भी करती हूँ। बट समहाउ आई फील कि इफ यू ब्रेनस्टॉर्म दोस क्वेश्चंस ना, आपको याद ज्यादा रहता है। Right. No, this segment is something on which Nikita has spoken a lot. That is making one-pager notes. She has detailed videos on our channel. But sure, since this is a very important component of mains preparation and it's very important if you want to clear this in the first attempt. So Nikita will brief you something about this also, how to make one-pager notes. उससे पहले आपको माइक्रो थीम्स आइडेंटिफाई करना है, आपको ये देखना है कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, आप अगर माइक्रो थीम को यूज करोगे फॉर मेकिंग वन पेजर नोट्स तो आपकी जर्नी काफी आसान हो जाएगी। और जैसे इस सिलेबस में आपको दिया ही हुआ है, अगर आप जीएस2 खोलोगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ आरपीए, उसमें ये सारे माइक्रो थीम्स हैं। एमसीसी वुड बी अ माइक्रो थीम, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वुड बी अ माइक्रो थीम, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शन डिस्प्यूट एंड डिस्क्वालिफिकेशन। अब ये हमने कहा कैसे पता किया? पीवाईक्यू से हमने देखा कि इस थीम से ये सब क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं। ठीक है, अब इसके डायमेंशंस क्या क्या बन सकते हैं? तो ये सब बन सकते हैं। इस पे आप वन पेजर नोट्स बनाएंगे या इसको ध्यान में रखते हुए आप वन पेजर नोट्स बनाएंगे, ये आप सबके साथ करेंगे। तो इसी को हमने यूज करते हुए ऐसे नोट्स बनाए जिसमें ऑब्जेक्टिव्स यस नो एमसीसी लेजिस्लेशन होना चाहिए, कमेटी रिकमेंडेशन, कंक्लूजन सब आपके पास एक ही पेज में होना चाहिए, ताकि जब आप रिवाइज करो तो आप सिर्फ ये पेज अपना रिवाइज करो एंड यू आर गुड टू गो, राइट। तो निकिता, हाउ टू मेक वन पेजर नोट्स, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। या तो पहली तो ऑफ कोर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि अंडरस्टैंड द सिलेबस। आंख के सामने आपका सिलेबस आपका चिपका होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। नो, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, यू हैव टू नो व्हाट योर सिलेबस इज। सेकेंडली, उसको सब्जेक्ट वाइज जीएस पेपर्स को सब सेक्शन वाइज डिवाइड कर ली। जैसे जीएस1 लिखा हुआ है तो यूपीएससी के कमीशन के उसमें बस टॉपिक्स लिखे हुए हैं। मेरा सजेशन है कि उन टॉपिक्स को भी फर्दर सब सब्जेक्ट्स में आप डिवाइड कर लीजिए कि यहाँ से यहाँ पोस्ट इंडिपेंडेंस का सिलेबस है, या इतना सारा मॉडर्न हिस्ट्री कवर करती है, ये ज्योग्राफी का पोर्शन है। उससे आपको ईजी होता है पीवाईक्यूज फिर आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि उसके बाद अगला स्टेप है कि आपको पीवाईक्यू उठाना है। पिक का सब्जेक्ट, एनालाइज द पास्ट क्वेश्चन, अंडरस्टैंड कि ओके इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आ रहा है, एंड देन उसके बाद क्रिएट माइक्रो थीम्स आउट ऑफ इट, जो हमने अभी पहले वाले स्लाइड में देखा कि अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट सिलेबस का पार्ट है
तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस हमारे आ रहे हैं, अब वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू भी हो सकता है, अब वो रीजनल पार्टी वर्सेस लोकल पार्टी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट वो हमारा काम है, वो हमें इतनी मेहनत करनी होगी कि हमें समझना है कि ये इस टॉपिक के अंदर का क्वेश्चन है। तो नाउ दैट यू हैव आइडेंटिफाइड कि आपका माइक्रो थीम्स क्या है, यू हैव टू डू टू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, पिक अप योर बुक एंड लर्न दोज थिंग्स। याद कर लीजिए, समझिए, कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर रखिए, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 1950 में क्या क्या आया था रिप्रेजेंट आरपीए एक्ट में, और 1951 में क्या क्या आया था। ये दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपका रिवीजन इतना बार हो जाना चाहिए कि आपको क्लियर होना चाहिए दोनों चीजें। उसके बाद नेशनल, ऑल्दो ठीक है ये इट बिकम्स अ लिटिल फैक्चुअल, बट देयर इज नथिंग हार्म इन रिमेंबरिंग कि नेशनल पार्टी का स्टेटस कब मिलता है एंड स्टेट पार्टी का स्टेटस आपको कब मिलता है, लोकल पार्टी और रीजनल पार्टीज में अंतर क्या होता है, थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में नॉलेज रखना। दीज आर द थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर एंड देन make the one pager notes on these micro themes. So the sequence goes as in see the syllabus, pick up the PYQs, make micro themes, read the content, and then make a one pager note. ये सबसे लास्ट का स्टेप है नोट मेकिंग, बट अगेन अ वेरी क्रूशियल स्टेप. So this I think women issues पे अगर जैसे women issues is like something जो हर साल आता है यूपीएससी के पेपर में, एक ही क्वेश्चन होगा बट क्वेश्चन जरूर होगा, तो आप पीवाईक्यूज देख के समझ जाते हो कि ठीक है विमेन रिलेटेड चीजों पे हमें ध्यान रखने की जरूरत है. अब उसमें आप क्या क्या ध्यान रखोगे? ऑफ कोर्स रीसेंट इवेंट्स पे ध्यान रखोगे, डिवाइडिंग इनटू कैटेगरी वाइज कि अगर देयर इज सेक्सुअल अब्यूज के क्या रिसेंट अनफॉर्चुनेट एग्जांपल्स हैं, या अगर पॉश के अंडर कुछ है, अगर मी टू मूवमेंट है, अगर विमेन सुसाइड का बात है, या ब्राइट बर्निंग के इश्यूज हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो कि आपके कंट्री में विमेन से रिलेटेड इश्यूज हैं क्या, और फिर उन इश्यूज के अंदर रीसेंट एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए, रेलेवेंट डेटा पता होना चाहिए. जैसे मैरिटल रेप इज इन द न्यूज, इट्स एन एथिकल डिलेमा एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम. So it's in news, you should know the data कि कितने percentage of women हैं who actually come forward and complain about the whole marital rape thing, and then क्या की challenges हैं जो फेस करना पड़ रहा है all those women जो इन particular issues में हमने डिवाइड किया है उनको, with best practices जो आप लगा सकते हो, so that these things can be improved. And then way forward, of course आपने जहाँ challenges issues mention किया है वहां आपको way forward mention करना है. और कंक्लूजन कोई स्टैटिस्टिक्स के साथ या कोड के साथ. अब ऐसा है कि विमेन रिलेटेड इशू में इंट्रोडक्शन तो चलिए फिर भी इशू रिलेटेड हो सकता है, कंक्लूजन आप एक कॉमन रख सकते हो कि इन सारी चीजों को करते हुए, बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव टू फोकस ऑन द बेटरमेंट ऑफ दोज इश्यूज एंड विमेन एम्पावरमेंट एट द सेम टाइम. तो आप एक दो कंक्लूजन रफ ड्राफ्ट में बना के रख सकते हो कि अगर विमेन रिलेटेड इश्यूज पे क्वेश्चन आया तो ये कंक्लूजन में यूज कर सकता हूँ. एंड देन लिमिट करना है कंटेंट को. कंटेंट लिमिटेशन इज अगेन सबसे क्रूशियल है, बिकॉज वी डोंट हैव टू रिमाइंड पीपल कि देयर इज अ वर्ड लिमिट. और सिर्फ वर्ड लिमिट के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देयर इज अ लिमिट टू व्हाट योर ब्रेन कैन रिमेंबर एंड हाउ मच इट कैन रिमेंबर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो ऐसी कोई भी चीज जो आपको लगता है कि अननेसेसरी लग रही है, या नहीं पूछते हैं, या बहुत ज्यादा डिटेल एंड डेप्थ है, स्पेशली जीएस के पेपर्स में. मैं ऑप्शनल के बारे में ये चीज नहीं बोलूंगी, बिकॉज ऑप्शनल का पेपर रिक्वायर्स अ सर्टेन काइंड ऑफ डेप्थ एंड कंटेंट, क्योंकि वो आपका अपना सब्जेक्ट है. तो वहां पे आप फिर भी घुस घुस के पढ़ते हो, समझ में आता है, चीजों को मेमोराइज करते हो. जीएस का पेपर इज जनरल स्टडीज, तो आपके आंसर्स स्पेसिफिक के साथ साथ जनरल का मिक्स होना चाहिए, एंड देयर शुड ओनली बी थिंग्स इन योर नोट्स व्हिच यू कैन एक्चुअली रिमेंबर. And of course, when you do that, then only you will be able to stick to the word limit, because again, that becomes very important. So these are some of her one-pager notes. Nikita, we can quickly glance through them. Yeah, I'll quickly just tell कि so this is something जो मैंने स्पेक्ट्रम का इसी फॉर्मेट में, क्योंकि स्पेक्ट्रम का आप वन पेजर बनाना बहुत पॉसिबल नहीं है, बिकॉज उसको आप वे फॉरवर्ड, इम्पैक्ट, इश्यूज, इस तरह के उसमें फ्रेमवर्क में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. बट अगेन आई यूज टू मेक श्योर कि नोट्स तो मेरे पास हो ही, क्योंकि मेंस के पहले जल्दी जल्दी पढ़ना है.
तो वो सारी चीजें सिर्फ लिखी जो मुझे लगता है कि थ्योरी तो मैं चलो मैनेज कर लूंगी, बट जो बुलेट पॉइंट्स हैं उनका मेंशन करना बहुत जरूरी है मेरे लिए, वो मुझे एक्चुअली याद रखना है। तो बुलेट पॉइंट्स के साथ एग्जाम्पल का ध्यान देते हुए चैलेंजेस बता रहे हैं, फ्रेंच वर्सेस ब्रिटेन के बारे में पॉइंटर्स लिख दिया कि दोनों में क्या अंतर था, अगर पूछ दिया तो पॉइंट्स मुझे याद होंगे तो आई नो कि मैं थ्योरी लिख दूंगी। तो इसी तरह से वीकनेस अब बताया कि भाई मुगल्स की वीकनेस क्या थी, मुगल्स को चैलेंजेस क्या फेस करना पड़ा, सब कुछ नहीं लिख रहे हैं, बस पॉइंट्स लिख रहे हैं। और ये हम तभी कर पा रहे हैं जब हमारा कंटेंट, जो हमारा बुक है जो हमें पढ़ना है, वो हमने एटलीस्ट 2 से 3 रीडिंग लगा के रिवाइज किया हुआ है। आप एक्सपेक्ट करोगे कि बिना रिवीजन किए, बिना कंटेंट को याद रखे हुए नोट्स बना लेता हूँ, तो आपके इतने ज्यादा नोट्स बनेंगे कि वो आपका हो सकता है स्पेक्ट्रम के बराबर नोट्स बन जाए। यू हैव टू कंसाइज इट एंड यू कैन ओनली डू इट इफ यू हैव रिवाइज्ड इट एंड मेमोराइज्ड सम पार्ट ऑफ इट एंड देन मेड श्योर कि जो मेरे को याद रखना है सिर्फ उतना ही लिखना है। Right. Going forward, then of course. इट्स द सेम, आई थिंक स्पेक्ट्रम का ही है ये नोट्स, जहाँ पे मैं पीपल्स रेजिस्टेंस के बारे में अगर बात करो आप, तो फैक्टर्स जल्दी से नोट डाउन कर लिए। मुझे याद था कि अगर मुझे पहली लाइन इनकी याद आ जाएगी तो मेरे को अंदर क्या लिखना है वो मैं बता दूंगी और एग्जाम्पल्स भी बता दूंगी, बट दिस इज समथिंग जो मेरे को दिक्कत होता है, सब पॉइंट्स याद करने में मुझे दिक्कत होती थी। अगेन वो थोड़ा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस वाली भी बात है, आपके नोट्स में आपको वो सारी चीजें लिखनी है जो आपका वीकनेस है, जिनको आप याद नहीं रख पा रहे हो। जो आप याद रख सकते हो उसको अपने नोट्स में आप नहीं भी डालोगे तो चलेगा, यू कैन वेरी वेल रिकॉल इट बैक। तो उसको डिवाइड कर रखा है, कितने फॉर्म्स थे, सिविल थे, पेजेंट थे, ट्राइबल थे, मिलिट्री थे, सबका 3 से 4 एग्जाम्पल लिखा है, इससे ज्यादा नहीं। अब आप सबके, अब मान लो आप स्पेक्ट्रम आप देखने जाओ तो सबके अंदर 20-20, 25-25 सारे रिवोल्ट दे रखे हैं। इट्स नॉट पॉसिबल टू रिमेम्बर, स्पेशली व्हेन यू आर राइटिंग अ थ्योरी पेपर। प्रीलिम्स में आप फिर भी रट जाओगे क्योंकि आपको वन वन पॉइंटर्स कुछ कुछ करके याद करना है, यहाँ आपको एक्चुअली थ्योरी लिखनी है। तो इट इज बेटर कि हर उसके अंदर 1 2 3 4 आप मेंशन करके रखो। ज्योग्राफी का ये पाम ऑयल पे था, दिस इज समथिंग आई फील कि आई कुड हैव रिटन मेड अ बेटर नोट, बिकॉज ये मैंने बहुत इनिशियल स्टार्टिंग में बनाया है जब मैं नोट्स मेकिंग कर रही थी, ऑल्दो आई हैड लर्न कि उसको कंसाइज कैसे करना है, बट आई स्टिल फील कि आई कुड मेक अ बेटर नोट, इससे बेटर। बट अगेन इसको कोई दिक्कत नहीं है, पाम ऑयल के बारे में लिखा तो थोड़ा सा यहाँ पे जैसे आप देखो, बस कंक्लूजन में एक स्टैट्स दे रखा है मैंने, यहाँ स्टार्टिंग में ही एक डेटा टेबल बना के, कंक्लूजन में आप स्टैट्स लिखने जाओगे, बाय द टाइम यू रीच द एंड ऑफ द आंसर आपको डेटा की वैल्यू नहीं समझ आती है। इस तरह के क्वेश्चंस में आई फील कि डेटा पॉइंटर्स हमेशा फर्स्ट पेज पे मेंशन कर दो। आप, आपको ध्यान होना चाहिए कि ये एक टॉपिक है और इससे रिलेटेड एक डेटा भी है जो अवेलेबल है। एकदम एंड को इसमें छोड़ोगे तो आपको उतना वो इम्पोर्टेंट दिमाग में फील नहीं होता है। इट्स जस्ट अबाउट द साइकोलॉजी कि सामने लिखो जिससे सामने दिख जाए बिल्कुल। Right. So एंड देन ये वर्ल्ड हिस्ट्री के हैं, फैशिज्म, नाजिज्म, आई थिंक फीचर्स, रीजंस, भाई पॉइंटर्स के फॉर्म में जल्दी जल्दी पलटना है। वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत टाइम लगाना नहीं था मुझे, तो बेसिक समझ गया, इवेंट्स को समझ लिया, वो याद रखा कि अच्छा कैसे था, क्या क्रोनोलॉजी थी जिसमें इवेंट्स गए हैं। बट अगर भूल गए तो सब पॉइंट्स दिमाग में है, सब पॉइंट्स हैंडी हैं, फट से याद कर लिया और आंसर में लिखा है। right. So the last segment that comes is the value addition. Yeah. And this is very important because you can't write pestle anymore. It won't give you marks. There is gone are those days, intro, body, conclusion. So अब आपको data, committee, Supreme Court judgments, way forward, diagram, बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, otherwise you are not making it. ये तो fact है. तो value addition you have to do so that you boost your answer with precision and depth. So these are the schemes that Nikita, of course, used to value add her answers. So this is just one segment of value addition schemes. बहुत सारे और features इसमें डल सकते हैं. So Nikita, more on value addition and probably the scheme part that you want to explain through the slide. Yeah, so value addition में I feel schemes, आपका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट्स, कमिटी रिकमेंडेशंस, डेटा, ये 4-5 चीजें आती हैं आपके वैल्यू एडिशन के अंदर। एंड मेरा ये शो करने का द ओनली पर्पस इज कि अंडरस्टैंड कि आपको वैल्यू एडिशन के भी नोट्स बनाने हैं, और अगर बनाने हैं एंड देन कैसे बनाने हैं। माई पर्सनल सजेशन टू यू वुड बी कि जो काम ये मैंने पेज में कर रखा है, आप रैदर इसको डिजिटाइज कर लो, बिकॉज दीज आर द थिंग्स आई पिक्ड अप फ्रॉम करंट अफेयर्स। अब जैसे इकोनॉमिक्स का मैंने एक हेडिंग डाल दी कि इकोनॉमिक्स है, अब इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी सब हेडिंग मुझे फील हुआ सिलेबस को देखते हुए, चाहे वो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट हो गया, चाहे वो फूड सिक्योरिटी हो गया या फूड प्रोसेसिंग हो गया,
हर टॉपिक के अंदर 3 से 4 स्कीम, अगर 3-4 स्कीम है वहां पे, नहीं तो 1-2 स्कीम लिख के उसको पेज में कर दिया। सेम अगर आप इंटरनल सिक्योरिटी के टॉपिक को देख लो, तो हेडिंग देके जो भी इंटरनल सिक्योरिटी में इश्यूज हैं, इलीगल माइग्रेशन हो गया, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन हो गया, या डेटा प्रोटेक्शन, साइबर सिक्योरिटी, इनके ऊपर क्या स्कीम्स हैं, इनको मैंने नोट कर लिया। अब इससे फायदा क्या होता है कि एक जगह वैसे आपको एक वो स्कीम वाली बुक मिल जाती है मार्केट में, उसमें से कुछ ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और कुछ ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते हैं। अब अनऑर्गेनाइज्ड स्कीम बुकलेट के साथ दिक्कत क्या होती है कि इवन दो यू रिमेम्बर दो स्कीम्स, समटाइम्स उस पैनिक एंड उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में उसको दिमाग में सेग्रीगेट करना मुश्किल हो जाता है। आपको रिकॉल करना पड़ता है कि यार कौन सा था वो स्कीम जो इस टॉपिक में लग रहा था। बट आप अपने स्कीम्स को अगर टॉपिक वाइज डिवाइड कर लो और फिर सब टॉपिक वाइज में लिखना शुरू करो, तो व्हेन यू रिवाइज इट, व्हेन यू पिक अप एंड सी इट मल्टीपल टाइम्स, आपको हेडिंग्स के साथ दिमाग में आ जाता है कि अच्छा ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन पे क्वेश्चन पूछा था तो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का मेंशन करना है। अगर साइबर सिक्योरिटी पे पूछा है तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी या CERT.in के बारे में कहीं ना कहीं बात करनी है। तो दिस गोज अ लॉन्ग वे। माई सजेशन टू यू वुड डू दिस समथिंग दैट यू शुड डू डिफरेंटली देन मी इन दिस केस, इसको आप डिजिटाइज करके बनाओ, क्योंकि उसमें फायदा ये है कि आप वहां पे आराम से एडिशन कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, अब मुझे अगर कुछ आगे फ्यूचर में ऐड करना होगा तो मेरे को यहाँ पे खिचड़ी बनानी पड़ेगी। तो आई एम अल्टीमेटली प्लानिंग ऑन डूइंग खुद से इसको डिजिटल में अपना भी कर लूं, जिससे मुझे अगर आगे पढ़ना हो तो मैं उसमें आराम से एडिशन कर सकूं। तो वैल्यू एडिशन वाली चीजें आई वुड पर्सनली रेकमेंड दैट यू डू इट इन अ डिजिटल फॉर्म, बी इट योर स्कीम्स और बी इट योर डेटा, या आपका कमिटी रिकमेंडेशंस हो गए या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हो गया। इनको वैल्यू एक डॉक में बना के रखिए एंड कीप एडिंग। न्यूज़पेपर में से जो पढ़ते हो, जो आपके सिलेबस से रिलेवेंट है, उसको ऐड करते जाओ एंड मेक इट अ हैबिट कि हर हफ्ते के एंड में इसको एक बार रिवाइज करते चलेंगे, आदत बनाएंगे कि अपने आंसर्स में इसको यूज कर रहे हैं। तब जब आपको फीडबैक मिलता है, तब आपको सही फीडबैक मिलता है कि आपने ये स्कीम सही जगह पे यूज की है कि नहीं, ये डेटा आपने सही तरह से यूज किया है कि नहीं। सो मेक दोज नोट्स एंड स्टार्ट यूजिंग। जैसे जैसे आपके नोट्स बनते जा रहे हैं, वैसे वैसे आप उस कंटेंट को अपने आंसर राइटिंग में भी ऐड करते जाओ। दैट इज व्हेन यू रियलाइज कि व्हाट यू आर एक्चुअली रीडिंग इज रेलेवेंट एंड यू गेट अ फीडबैक अबाउट इट कि व्हाट यू आर राइटिंग इट इन द राइट प्लेस एंड एट द राइट टाइम। Right. So, Nikita, we can take few questions and then probably you can leave. Sure. Sure. So, when do you start answer writing? ओके, आंसर राइटिंग मेरे अकॉर्डिंग अगस्त से आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। जुलाई कैन बी अ लिटिल, थोड़ा सा आराम से, क्योंकि तुरंत आप प्रीलिम्स देके हटे होते हो तो थोड़ा सा यू नीड ब्रेक। तो टेक अ लिटिल 15-20 डेज का ब्रेक इन जून। उसके बाद थोड़ा इनर्शिया आता है पढ़ने में, बट मेक श्योर कि जुलाई तक आपका वो मोड आ चुका है वेर यू हैव स्टार्टेड स्टडिंग, स्टार्टेड रिवाइजिंग थिंग्स, एंड अगस्त से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लो कि अब आंसर राइटिंग शुरू करना है मुझे। When do you may start making one-pager notes? One-pager notes, सर आई फील कि मुझे लगता है कि थोड़ा इनिशियली में 1-pager नोट्स पे जंप नहीं करना चाहिए। आई फील कि PYQs देखो, आप अपना कंटेंट पढ़ो, उसके बाद 1-2 रिवीजन के बाद आप 1-pager नोट्स बनाओ। इसीलिए मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कभी कभी कि इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर मेंस कंप्लीटली, तो आप वो वाला प्रीलिम्स का भी अटेम्प्ट अपना मत दो। बिकॉज अगर आपका निकल भी रहा है एंड यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर योर मेंस, यू आर एक्चुअली वेस्टिंग अनदर अटेम्प्ट बिकॉज यू आर बैक टू स्क्वायर वन। तो मेक श्योर दैट यू आर रेडी फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। अब दिस कुड गो लॉन्ग, कुछ लोगों को ये 8-10 महीने में हो जाता है, कुछ लोग को 1 साल का टाइम लग जाता है। सो डिपेंडिंग ऑन हाउ इजिली यू ग्रास्प कंटेंट और कितना स्ट्रॉन्ग है आपका लैंग्वेज वाला पार्ट, उस पर डिपेंड करता है कि आपको 1-pager नोट्स एक्चुअली कितने टाइम तक बनाना है और कब बनाना शुरू कर देना है। मेरा एडवाइस ये है कि वो आपका अपना डिस्क्रेशन होना चाहिए। आई कांट गिव अ टाइमलाइन टू एनीबॉडी कि आपको एग्जैक्टली इस महीने से आंसर 1-pager नोट्स बनाना शुरू कर देना है। द मोमेंट यू आर डन विथ योर PYQs, यू आर डन विथ योर कंटेंट एंड यू नो कि आपको क्या पढ़ना है, क्या याद रखना है, आप उसके बाद 1-pager नोट्स बनाइए। Something on revision, Nikita, if you want to share. एवरी वीक, एट द एंड ऑफ एवरी वीक, मैं रोज तो नहीं करती थी रिवीजन, ऑनेस्टली रोज मैं पढ़ती भी नहीं थी फॉर दैट मैटर।
बट हाँ ठीक है, आई थिंक संडे और मंडे डिपेंडिंग ऑन माई मूड एंड डिपेंडिंग ऑन हाउ मच आई हैव कवर्ड इन द पास्ट वीक, आई यूज टू फिक्स फॉर रिविजन एंड दैट वाज नो ब्रेनर, नो कॉम्प्रोमाइज। वो करना ही है, क्योंकि वो दैट इज व्हाट इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू। नया कंटेंट पढ़ के पुराना नहीं याद रहेगा, कोई पॉइंट नहीं है। Right. Would you include new schemes or current issues also in one pager notes? ऑफ कोर्स, अगर मान लीजिए फूड प्रोसेसिंग का टॉपिक है और आपको मालूम है कि कोई नई स्कीम आई है, कि देयर सम न्यू डेटा, ऑफ कोर्स डेफिनेटली पुट इट। और इट्स बेटर दैट यू पुट अप द लेटेस्ट स्कीम्स एंड डेटास इन योर आंसर्स रादर देन कोटिंग द ओल्ड ones. You can do the old ones also, but new है तो why not? Right. Thank you so much for your time, Nikita. It's always a pleasure to host you. Students, don't worry, I'll answer the rest of your questions. Thank you so much. Okay. Okay, thank you.